Good morning. Um, After a long time, welcome back to another class of control and coordination. In the last class, I guess we completed up with adrenal gland. Completely adrenal gland का हमने cortex की बात की थी, right? A quick recap of what we did in the last class. We spoke about adrenal gland, which is ectomesodermal in origin. करेक्ट. एक्टोडर्मल इन ओरिजिन का क्या है? एड्रिनल मेड्यूला. अब वो रीजन बात करेंगे हम लोग. और मीजोडर्मल ओरिजिन का क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स. अगेन एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड अंडर थ्री. एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड अंडर थ्री पर्टिकुलर रीजन्स, है ना? जीएफआर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस. जोना ग्लोमेरुलोसा बनाता है zona glomerulosa makes mineralocorticoids, zona fasciculata makes glucocorticoids, and zona reticularis makes gonadocorticoids, right? So what we have to start up with this particular in this lecture is adrenal medulla, correct? So adrenal medulla जो है, again I told you we will be doing it in two different sections, ठीक है? So adrenal medulla is completely ectodermal in origin. It is completely ectodermal in origin. Now, why do you say that adrenal medulla is ectodermal in origin? Because the cells of the adrenal medulla is very similar to those cells of your brain. मतलब हुआ क्या होगा on that particular context during embryogenesis and organogenesis. मतलब during the growth of the embryo and the formation of the organs, your nervous system, central nervous system and peripheral nervous system, they are derived from your neural crest. ठीक है? एनिमल किंगडम में आप पढ़ोगे डोर्सल नर्व कॉर्ड. ये नर्व कॉर्ड एक्सटेंड होकर न्यूरल क्रेस्ट बनाता है, और यही न्यूरल क्रेस्ट के सेल्स दे प्रोलिफरेट एंड दे मेक अप योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बट नाउ व्हेन यू कंसिडर एड्रिनल मेड्यूला, कि ऐसा हुआ होगा कि एड्रिनल ग्लैंड जो बन रहा था, some cells they migrated from your neural crest, they migrated towards to form the adrenal medulla. मतलब technically there was a long axon connecting both the structures, but looking at that particular fact that your nervous system, when you talk about your brain and your adrenal medulla or adrenal gland, they present very far away from in your body. So हम looking at that particular context, the connections between the adrenal medulla and your brain was lost the organism started to develop. तो ये जो cells है, जो adrenal medulla के जो neuronal cells थे, once upon a time they were neurons, but technically they are the cytons of the neurons. Now these cytons of the neurons have lost their function of nerve impulse transmission and they have gained another function, and that is secretion. मतलब घूम फिर कर बात क्या है? Adrenal medulla is made up of certain specialized cells which are called as chromaffin cells. Chromaffin cells, इसी cells को हम बोलेंगे pheochromocytes. Pheochromocytes. Now what are these pheochromocytes? They are derived from the neural crest, and these cells, they have lost the function of a neuron and they have attained a function that is secretion. ठीक है? Now what do they secrete? Their secretion is of two different types. They secrete adrenaline and noradrenaline. एड्रीनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. ठीक है? अब ये एड्रीनालिन नॉरएड्रेनालिन इज आल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल इन नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन. मतलब ये एक हार्मोन भी है. इट एक्ट्स ऑन वेरियस ऑर्गन्स लाइक योर लिवर, वेरियस ऑर्गन्स लाइक योर गॉल ब्लैडर, एक्सेट्रा, राइट? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज आल्सो एक्टिंग between the synapses as a neurotransmitter. ठीक है बेटा? ठीक है? तो एड्रीनालिन, नॉरएड्रेनालिन. एड्रीनालिन is produced approximately in 80% quantity and noradrenaline is produced in 20% quantity.
अब एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, दे आर सिनर्जिस्टिक हॉर्मोन्स, मतलब नॉर है, नॉन नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे राइट इट नॉन एड्रीनालिन, इट इज नॉट, इफ यू राइट नॉन एड्रीनालिन इट इज एक्टिंग ऑन एंटागोनिस्टिक ऑपोजिट टू देयर फंक्शन, सो इट इज नॉर एड्रीनालिन, ठीक है। अब इसको एक और नाम मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये भी वर्ड क्यों दिया है, एपी मतलब ऊपर, नेफ्रिन मतलब नेफ्रिक रीजन, नेफ्रिक रीजन इज योर किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, और सुप्रारीनल ग्लैंड, और वो सुप्रारीनल ग्लैंड बनाता है एपिनेफ्रिन। कूल। So now when you talk about the functions of adrenaline and noradrenaline, adrenaline is comparatively, adrenaline noradrenaline की function synergistic है, मतलब जो adrenaline का function है वही noradrenaline का function है, right? So these hormones they function, these hormones adrenaline and noradrenaline, they are called as the 3F hormones. So why are they called the 3F hormones? Because 3F ये तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, 3F hormones, that is fight, fright and flight response, fight, fright and flight response, ठीक है। क्यों इसको बोलते हैं, because when you are extremely scared or when you are extreme fight, when you are extremely angry, fright, when you are extremely scared, and flight, when you are scared and you want to run away from that particular situation, right? So these hormones, they are secreted during these, when you experience one of these particular cases, or unanimously all the three particular cases, so these hormones are being released from your adrenal medulla into your bloodstream, और बाद में ये क्या धमाका करते हैं बॉडी के अंदर, that we have to understand. Now when you talk about fight, fright and flight response, अब इमेजिन कर लो कि आप एक डेंजरस कंडीशन में चले गए हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप चले गए हो एक डेंजरस पिट के अंदर, देयर आर सो मेनी स्नेक्स ऑल अराउंड, right? So on that particular context, some of the individual will start shaking, some of the individual will sit calmly and they'll try how to rescue themselves from that particular situation, right? So when you talk about, कुछ लोगों का दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, कुछ लोगों का दिमाग बहुत जोर से चलने लगता है, मतलब technically to all what we want is to get out of that particular situation. It is not only you are wanting to get out of that particular situation, your body is also wanting to get out of that situation. मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कोई danger experience करते हो, your body gets into a mode and that mode is called as life saving mode. ठीक है, तो अब life saving mode में जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट पैराशूट इज अ लाइफ सेवर, करेक्ट। तो अगर आप गिर जाते हो बाय दैट पर्टिकुलर मैटर, कुछ सेंसर्स होंगे जिसकी वजह से पैराशूट खुल जाता है। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट योर ब्रेन आल्सो, व्हेन you are put into a dangerous condition or a filthy condition or a condition with respect to anger, your body wants to protect yourself, your body wants to protect your internal organs from getting damaged, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि when you talk about extreme anger में your blood vessels, tiny blood vessels, they rupture, so extreme anger में extreme blood pressure होगा जिसकी वजह से damages can take place. So these particular system they associate, मतलब ये तीनों हार्मोन जो है ये हेल्प करते हैं with respect to maintaining a autonomic type of nervous system, and that is sympathetic nervous system. Sympathetic and parasympathetic nervous system. ठीक है, sympathetic and parasympathetic nervous system. Now we will try to list down the changes which it does. Majorly आपका एड्रीनालिन जो है, एड्रीनालिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक को नहीं बेटा। पैरासिम्पैथेटिक इज नथिंग बट मतलब
तुम्हारे बॉडी में लाइफ सेविंग मोड को स्टार्ट करने वाला सिस्टम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तुम्हारे मोड को वापस रेगुलराइज नॉर्मल स्टेट में लाने वाला जो कंडीशन है दैट इज parasympathetic nervous system. Now you might have experienced this particular thing that if you are extremely angry or if you are sensing some danger with respect to dog, समझ मान लो कि आपके पीछे कुत्ता बढ़ गया है ना, तो आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पीड से दौड़ते हो, मतलब दैट इज नॉट योर रेगुलर स्पीड। इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू रन ऑन अ ट्रैक, है ना, आप इतने स्पीड से नहीं दौड़ोगे, बट अगर आपके पीछे कुत्ते या शेर दौड़ा दे तो आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पीड से दौड़ते हो। वेयर इज दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पीड कमिंग फ्रॉम? सो बॉडी लाइफ सेविंग मोड में क्या क्या करती है, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जहां पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट रुक जाती है, जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है एटीपी की, वहां पे द एटीपी इज बीइंग सप्लाइड। नाउ वी विल ट्राई टू ऑर्गेनाइजली स्टडी द चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन योर ओन बॉडी व्हेन यू आर एक्सट्रीमली स्कैर्ड, है ना। So पहली चेंज क्या हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल when you talk about what all do you require, if you are in a danger you have to require a very clear vision, ठीक है, आप डेंजर के कंडीशन में बहुत क्लियरली देखना चाहते हैं, सो बॉडी क्या करती है, इट विल ट्राई टू डायलेट योर स्फिंक्टर मसल, सो विल ट्राई टू लिस्ट डाउन, ठीक है, हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस सिस्टम्स, ठीक है। All right. So when you talk about the characteristics, I told you with respect to your iris क्या होगा? Iris will dilate. So what does adrenaline does? It dilates the iris. ठीक है, नॉरएड्रेनालिन भी वही करेगा बेटा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इट इज कमिंग बैक टू, ये लिखा क्यों है? बिकॉज ये एक्सट्रीम कंडीशंस है। डायलेशन होगा तो क्या होगा? आइरिस डायलेट होगा तो क्या होगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सी क्लियरली इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। एनी स्मॉल चेंज व्हिच इज बीइंग विटनेस्ड यू विल बी एबल टू सी दैट। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? ये डायलेशन बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए ना आपको। अगर आप डेंजर से बाहर आ गए, योर आइरिस कैन नॉट रिमेन इन अ डायलेटेड स्टेट, है ना, तो भी डैमेज है, तो उसको वापस नॉर्मलाइज करने का काम कौन कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो वी विल ओनली राइट डाउन सिंपैथेटिक एड्रेनालिन का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये एड्रेनालिन का फंक्शन लिखते हैं। सब्सिक्वेंटली वी विल ट्राई टू फिल अप दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। सो आइरिस समझ गया आपका। आइरिस के बाद आपकी विद रिस्पेक्ट टू और आप नीचे जाओगे तो आपका आता है माउथ, है ना। डेंजर में आपका मुंह सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली लेस अमाउंट ऑफ सलाइवा व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। इफ यू आर एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत जोर से चिल्ला रहे हो, तभी भी आपका मुंह सूख जाता है। क्यों? बिकॉज वहां पे सलाइवा की रिक्वायरमेंट नहीं है, correct? So when you are extremely angry or when you are extremely scared, you don't require saliva, so saliva secretion is stopped because saliva का production will also require ATP, है ना। तो अभी for that particular time being salivary glands को ATP की requirement नहीं है। ATP की requirement कहाँ पे है? skeletal muscles को है, right? So that skeletal muscle को extra amount of ATP मिला है and extra amount of ATP के साथ it can be able to do a very strong contraction relaxation so that you can get away from that situation, right? So the next characteristic feature is with respect to salivary glands. So let's write down with respect to salivation, ठीक है। तो यहां पे what happens? Salivation is inhibited, ठीक है। Salivation is stopped for that particular momentarily time, ठीक है। उसके बाद और नीचे आ जाओ, salivation रुक गया है और क्या क्या कंडीशंस है विद रिस्पेक्ट टू फेस, विद रिस्पेक्ट टू योर नाउ कमिंग डाउन टू योर ब्रीदिंग रेट, है ना। अब ब्रीदिंग रेट एंड द अदर इज सब्सिक्वेंटली ब्रीदिंग रेट से लिंक्ड कौन सा है? हार्ट रेट, ठीक है। सो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा बेटा? अब कॉमन सेंस है बेटा, अगर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी चाहिए, आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लगेगा। चलो ग्लूकोज कहां पे है आपके पास? स्टोर्ड ग्लूकोज कहां पे है? आपके लिवर में है। इफ यू रिमेंबर आई हैव आल्सो टोल्ड यू, आई हैव आल्सो टॉट यू फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन और एड्रेनालिन का एक फंक्शन सिमिलर है, दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस।
तो एड्रेनालिन लिवर पे काम करेगा, लिवर पे वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा, रेडिली ग्लूकोज अवेलेबल करवाएगा। बट सिर्फ ग्लूकोज मिलने से काम बनेगा क्या? नहीं. So we also require subsequently proportional to the amount of glucose which has been released into your blood, you also require amount of oxygen, greater amount of oxygen, and that can be supplied by increasing the breathing rate. So ये सब एक sequence के जैसा है. So breathing rate क्या करेगा? It will increase the breathing rate. What will adrenaline do or noradrenaline do? They will increase the breathing rate. अगर breathing rate increased है तो subsequently heart rate भी increased होना चाहिए technically, right? So it will also increase heart rate. Heart rate अगर increase होगा तो क्या होगा? Rapid supply of blood, because carrying major muscles को carrying ये सब nutrients, glucose का oxygen carry करवाने का medium कौन सा है? Blood. तो subsequently heart rate is also increased so that rapidly the blood can be supplied to your muscles. ठीक है बेटा, चलो ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू योर पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस ऑफ जीआई ट्रैक्ट. तो आपने देखा रहेगा कि पेरिस्टाल्सिस विद रिस्पेक्ट टू भूख नहीं लगती आपको, पेरिस्टाल्सिस रुक जाती है. सो पेरिस्टाल्सिस इज स्टॉप्ड, राइट? सो ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज पेरिस्टाल्सिस में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा. तो अभी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ योर स्केलेटल मसल इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट स्मूथ मसल्स. सो वहां पे वो एटीपी की सप्लाई रोक देगा, वहां पे वो पेरिस्टाल्सिस रोक देगा, एंड सब्सिक्वेंटली दैट एटीपी इज गिवन टू योर skeletal muscles. So what is peristalsis done? What happens to the peristalsis? It causes cessation or stop for a temporary period of time. ठीक है? Peristalsis of the GI tract. With respect to next, with respect to gallbladder. अब गॉल ब्लैडर से क्या निकलना चाहिए? गॉल ब्लैडर से निकलना चाहिए बाइल. अब बाइल की रिक्वायरमेंट है क्या? जब पेरिस्टाल्सिस ही रुक गया, डाइजेशन का प्रोसेस ही थोड़ा टाइम के लिए होल्ड पे आ गया, सो यू डोंट रिक्वायर गॉल ब्लैडर, राइट? सो गॉल ब्लैडर का ये कॉन्ट्रैक्शन इट विल कॉज रिलैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा. So what it does to the gallbladder contraction? It will cause relaxation of the gallbladder. Relaxation of the gallbladder. Similarly, उसके बाद with respect to what does it do in the liver? What does it do in the liver? It will cause increased glycogenolysis. It will cause increased glycogenolysis. ठीक है? It will decrease enzyme production. It will decrease bile production. ठीक है बेटा? Similarly, liver के बाद आता है अभी गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है? सो व्हेन यू टॉक अबाउट यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो देयर आल्सो एटीपी इज बीइंग रिक्वायर्ड, करेक्ट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट मिक्चुरेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्ट ऑफ यूरिनेशन, जब आप यूरिनेट करते हो, सो द मसल्स और द स्फिंक्टर मसल्स दे रिलैक्स. ठीक है? whereas your गॉल ब्लैडर के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. स्फिंक्टर मसल्स जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर, दे विल रिलैक्स. तभी तो ओपनिंग खुलेगी एंड थ्रू दैट यूरेथ्रल ओपनिंग द यूरिन विल पास. बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर गॉल ब्लैडर जो ऊपर प्रेजेंट है, उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा सो दैट दे कैन पुश आउट, दे कैन थ्रो आउट द यूरिन व्हिच इज बीन स्टोर्ड. एंड द कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स एटीपी. सो यहां पे एटीपी को सेव करना है. So what does urinary bladder does, or what happens to the urinary bladder का muscle? It again just very similar to your gall bladder, it relaxes. So urinary bladder relax होगा तो क्या होगा? More and more urine will be collected. आपको act of urination होगा. जब urinary bladder relaxed है बेटा, तो common sense है, urinary bladder relaxed है, इसका मतलब और expand हो रही है, जगह हो रही है, so the urine can be easily thrown out, urine can be easily passed from the kidney to the
to the urinary bladder. But I told you ये दोनों का opposite आपस का बनता नहीं है. स्फिंक्टर और स्फिंक्टर और यूरिनरी ब्लैडर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. So when your gallbladder is relaxing, the sphincter should be contracted. Correct? तो आपको urination की feeling आती है when you are extremely scared or angry. Correct? That is due to urinary bladder relaxes. What happens to these urethral sphincter? What happens to the urethral sphincters? Urethral sphincters will be constricted, contracted. ठीक है बेटा. सो यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेस, यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स. ये सब जो एक्टिविटी है, ये सब एक्टिविटी किसका है? एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. एंड दिस इज हाउ दे हेल्प यू टू रिकवर. दिस इज हाउ दे हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ योर सिचुएशन ऑफ डेंजर और सिचुएशन ऑफ एंगर. इसीलिए इनको बोलते हैं 3F हार्मोन्स. राइट? सो अब ये लाइफ सेविंग मोड में ये सब चीजें हो गई आपके बॉडी में. Now you cannot remain this way. You cannot live with a hypertensive condition. You cannot stay with increased blood pressure. तो आपको सबको normalize करना पड़ेगा. You cannot stay with a dry mouth absolutely. So ये सब चीजों को normalize करवाना पड़ेगा. Normalize करवाने का hormone नहीं, technically when you talk about neurotransmitter acetylcholine plays a major role. So parasympathetic nervous system का neurotransmitter है acetylcholine. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनालिन व्हिच इज आल्सो हार्मोन. देखो इस पे वो अपना वेयर इज दैट लिवर पे वो हार्मोनल एक्टिविटी शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हम इसी के ऑपोजिट में लिख सकते हैं. आइरिस क्या होगा? कंस्ट्रिक्ट होगा. आइरिस कंस्ट्रिक्ट्स. Salivation will be stimulated again. Breathing rate decreases. मतलब जो increase हुआ है वो decrease होगा. Right? It will not decrease up after a threshold or after a normal limit. ठीक है? Heart rate decreases मतलब it will only decrease till it comes back to 72. उसके beyond नहीं जाएगा बेटा. ठीक है. पेरिस्टालसिस इज अगेन सेसेशन. स्टॉप हुआ था. पेरिस्टालसिस स्टार्ट्स और कंटिन्यूस. गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. बिकॉज डाइजेशन वापस स्टार्ट हो जाएगा. डाइजेशन स्टार्ट होगा तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होना इंपॉर्टेंट है. लिवर में व्हाट विल हैपन अगेन? डिक्रीज्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, increase enzyme and bile production. Similarly urinary bladder क्या होगा? Urinary bladder will now contract. इसलिए आपको जो यूरिनेशन की फीलिंग आती है then you urinate. ठीक है. and urethral sphincter relaxes. ठीक है बेटा. So that is with respect to adrenaline and noradrenaline. You do not have any particular pathologies with respect to adrenaline and noradrenaline. You only have this much to be known because हम यही central nervous system मतलब बोलने का मतलब ये है कि hormonal system को then we continued it to the nervous system any which ways. So let's get started with the next topic, last topic of this particular chapter, and that is gonads. अब यही continuation में फिर हम start करेंगे with the next chapter in the next class, and that is human reproduction. I wanted to take this particular class in the lecture itself, but then अभी क्या करें? Condition ऐसी है कि हमको सब कुछ वीडियो में बनाना पड़ेगा. So the next topic
or the next gland which we have to continue with is gonads. Now when you talk about gonads, gonads are the primary sex organs. They are the primary sex organs, and gonads also can be considered as heterocrine gland. अब यहाँ पे देखो heterocrine, pancreas is a true heterocrine gland. I told you I used the word considered. It can be considered as a heterocrine gland, but then it is not a true heterocrine gland, right? क्योंकि इसके भी कुछ secretions है, कुछ hormones है जो blood में release होते हैं. But apart from the hormone, there is also other cells, like for example sperm and ovum, which is being released, and that is not released into the blood. So ये exocrine secretion है. Secretion नहीं बोलेंगे, exocrine release है. ठीक है? Because it is purely not a secretion. So it can be considered as heterocrine glands. Gonads are primary sex organs. Now why do we say what are primary sex organs and secondary sex organs? Primary sex organs are those which are formed first, right? When you talk about organogenesis, testes and ovary पहले डेवलप हुए थे, उसके बाद डेवलप हुआ था मेल एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेल एंड फीमेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, राइट? तो आई टोल्ड यू 3 महीने पहले तक all of us were female. We say this particular thing. We did not have gonads, we had primordial gonads. अब primordial gonads can, पता नहीं है, नसीब पता नहीं है, primordial gonad can also become male, that is testis, or it can differentiate into ovaries. अब टेस्टिस में डिफरेंशिएट कैसे होगा? इन दी प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन. मतलब अगर बच्चा मेल है तो XY क्रोमोसोम होंगे, Y क्रोमोसोम का एक अदर फैक्टर है, Y क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर function है that it also is responsible for production of testosterone. Now that testosterone is being produced released into the fetuses, into the fetal body, into the fetal bloodstream, and जिसके वजह से primordial gonads then gets differentiated into testes. ठीक है बेटा? So gonads के बारे में. और secondary sex organs क्या होंगे? Like for example, when you talk about external genitalia, male penis is secondary sex organ, vagina is a secondary sex organ. ठीक है? So इसको भी हम लोग 2 particular category में पढ़ेंगे with respect to the function. Now when you talk about gonads again, और major function लिखेंगे हम कि it is also mesodermal in origin. Gonad is mesodermal in origin. ठीक है? गोनाड का एक्सोक्राइन पार्ट, गोनाड का एक्सोक्राइन फंक्शन इज रिलीज ऑफ गैमेट्स. Release of gametes. Cool? So let's try and understand the histology. Let's try and understand the different function, different type of cells. Histology. ठीक है? अब हिस्टोलॉजी में हम 2 सेक्शन में पढ़ेंगे. हिस्टोलॉजी ऑफ गोनाड्स, इसको हम 2 सेक्शन में पढ़ेंगे. In male and in female. In male, the gonads. In male, it is called, the gonads are called as testis, and in the female, they are called as ovaries. Testis, TIS, is for singular. If you talk one testis, if you talk multiple मतलब 2 testis की बात करोगे तो TES, testis. ठीक है? So testis in males, ovaries in females. Now when you talk about testis, there are 2 different type of cells. सिर्फ हार्मोन्स की बातें कर रहे हैं बेटा हम, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं. सो वन सेल इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स एंड द अदर इज कॉल्ड एज Leydig cells. Sertoli cells and Leydig cells. Similarly, females में there are 2 type of cells. मतलब 2 type of not cells, but then 2 type of
सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो पहला स्ट्रक्चर है, पहला सेल है ग्रैन्युलोसा सेल्स and the other is called as corpus luteum. ठीक है। Sertoli cells are also referred to as, they are also called as nursing cells, or they are called as sustencular cells. Whereas Leydig cells are also called as interstitial cells. Interstitial cells, ठीक है। ग्रैन्युलोसा सेल्स को कोई दूसरा नाम नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम को कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। And what is the function? What is the role of Sertoli cells? That is what we need to understand. Sertoli cells क्या बनाएंगे बेटा? Sertoli cells produces a hormone or a protein which is called as first ABP. ABP माजा, androgen binding protein. Androgen binding protein. Apart from this, it also produces activin and inhibin, ठीक है। एक्टिविन एंड इनहिबिन, ये मेजर हार्मोन्स है which we'll be talking about. Androgen binding protein, activin and inhibin. Interstitial cells or Leydig cells, they produce only one hormone and that is testosterone, ठीक है। Whereas granulosa cells, these cells, they will produce an important hormone called as estrogen, ठीक है, estrogen. Whereas corpus luteum produces a hormone called as progesterone in larger amount. Corpus luteum also produces estrogen in smaller amount, and it also produces an important hormone called as relaxin, ठीक है। इसके estrogen के अलावा granulosa cells also produce a hormone very similar to Sertoli cells, that is activin and inhibin, ठीक है। फंक्शन हम लिखेंगे वहां पे, we'll try to list down all the functions of what is androgen binding factor, what is activin and inhibin and etc, ठीक है बेटा। So this is with respect to the histology. Now we'll have to understand the functions of the hormones. So पहले हमने क्या लिखा with respect to first thing is androgen binding protein. Androgen binding protein. Now what does it do? Basically, this androgen binding protein is responsible for concentration, is responsible for concentrating testosterone in the tubular lumen. ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है बेटा, अगर where are testis, where are sperm cells being produced? Sperm cells are produced in the seminiferous tubules, इसलिए tubular. So ये seminiferous tubules में Sertoli cells होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम हमने अगर देखना है, so that is if you take consider this as your cross section, एक पर्टिकुलर ट्यूब को कट किया हमने और ऐसे कुछ पिरामिडल शेप के सेल्स होंगे, they are called as Sertoli cells. They are called as Sertoli cells, ठीक है। And इसके अलावा there will be germinal epithelial cells, and these germinal epithelial cells will ultimately become the sperm cells. यही differentiate होंगे और ये sperm cell बनेंगे, and ये sperm cell will be attached. The sperm cell will be attached to the Sertoli cells, correct? Hence, because attached रहेंगे, ऐसे दिखते हैं under the microscope. Now they are basically deriving, they are basically getting matured. So बोलने का मतलब ये है बेटा कि
स्पर्म सेल्स को नर्सिंग करने का काम, स्पर्म सेल्स को बेसिक न्यूट्रिशन देने का काम, टेम्पररी न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है? सर्टोली सेल्स, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज नर्सिंग सेल्स। ठीक है, सो बोलने का मतलब ये है बेटा कि सर्टोली सेल्स दे प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज एबीपी। ठीक है, और आपके जो इंटर दैट इज लेडिक सेल्स है, लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन क्लस्टर्स, जैसे क्लस्टर्स में अरेंज्ड रहेंगे, एंड दे आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम्स, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? इंटरस्टिशियल सेल्स। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर योर सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट, करेक्ट? ये ट्यूब के अंदर जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स है, ये ट्यूब के अंदर बनेगा स्पर्म सेल्स। whereas your interstitial cells, that is Leydig cells, are present in this particular area, they are not present inside, right? So बोलने का मतलब ये है, we also make up a statement saying that टेस्टोस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब वो हम डिसाइड बोलते हैं ना कि अगर टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा है तो स्पर्म प्रोडक्शन एक्टिव होगा, ज्यादा होगा, राइट? बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर आई एम टेलिंग यू, करेक्ट? सो टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पांसिबल फॉर एक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। अब टेस्टोस्टेरॉन तो यहां से प्रोड्यूस हो रहा है ना, चलो हम इसको ऐसे लेबल करते हैं, ये टेस्टोस्टेरॉन, इसको हम सर्कल से लेबल करते हैं, ठीक है? और व्हाट इज दिस? डॉट से हमने क्या लेबल किया है? एबीपी। और ये क्या है? सर्कल से हमने लेबल किया टीएसटी, टेस्टोस्टेरॉन, राइट? सो एबीपी क्या करेगा? एबीपी इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, राइट? सो इंटरस्टिशियम में टेस्टोस्टेरॉन है, that testosterone has to be concentrated in the interstitium. So ABP is associated, androgen is testosterone, andro male, और hormone gen, so male hormone that is testosterone को bind करने का प्रोटीन। so imagine कर लो ये iron filings है और ABP is acting like a magnet, so ये ABP is responsible for concentrating testosterone into the interstitial lumen, और जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन इंटरस्टिशियल ल्यूमेन में कंसंट्रेट हो जाएगा, एक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस कैन इफेक्टिवली टेक प्लेस। वेरी क्लियर? ठीक है, सो एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर का फंक्शन आपको समझ गया। दूसरा हार्मोन है विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग इज एक्टिविन। एक्टिविन इज एसोसिएटेड, इट स्टिम्युलेट्स FSH production, it stimulates FSH production, inhibits FSH production. Of that particular matter, understanding this particular in males, है ना, male में spermatogenesis, that is sperm production, can take place for a long period of time for that particular matter. But अगर मैं females की बात करूँ, female में the reproductive life cycle is absolutely restricted. It is restricted to menopause. So अब बोलने का मतलब ये है बेटा कि मेल में एक्टिविन का काम क्या है? It is associated with FSH production. FSH is indirectly associated to ABP production. ABP is indirectly associated to testosterone को concentration. So घूम फिर कर बात आती है spermatogenesis. So आपको दोनों हार्मोन चाहिए, FSH भी चाहिए, टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए for active spermatogenesis, right? But एक मेल में, for example, if a male is not having an active sexual life, right? So अगर active sexual life नहीं है, so on that particular context, we don't want large amount of FSH, है ना? Sperm का production हो रहा है बेटा, रोज हो रहा है, right? Every day, है ना? Old sperms they die after they reach a particular age, and new cells are replenished. मतलब बोलने का मतलब ये है they die and they are reabsorbed, the cellular material is reabsorbed and new cells are being produced. But if a person, so for that particular matter, when you talk about if a person is involving in sexual intercourse, the person ejaculates and there is a considerable amount of semen or sperm cells which enters into the female reproductive tract. अब क्या हो गया है, स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ना पड़ेगा. So on that particular context, activin will be released and activin will stimulate FSH production और spermatogenesis actively होते रहेगा. But अगर एक इंसान की एक्टिव सेक्सुअल लाइफ नहीं है,
राइट. अगर एक्टिव सेक्सुअल लाइफ नहीं है, सो वी डू नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एफएसएच, एंड सो एफएसएच को इनहिबिट कौन कर रहा है? इनहिबिट. सो ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्टिव लाइफ, दीज टू हार्मोन्स दे प्ले अ मेजर रोल. ठीक है. इसके बाद when you talk about the next hormone, and next hormone, so आपके एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर 3 हार्मोन विद रिस्पेक्ट टू सस्टेक्युलर सेल्स खत्म हो गए. इसके अलावा फोर्थ हार्मोन ऑफ द मेल व्हिच वी टॉक अबाउट इज टेस्टोस्टेरोन. Now testosterone is responsible for production or responsible for active spermatogenesis. ये मैंने आपको बताया कि spermatogenesis को वो हेल्प कर रहा है. इसके अलावा testosterone is also responsible for development of secondary male secondary sexual characteristics, male secondary sexual characters. इसके अलावा they are also responsible for increases muscle mass. अब मेल सेक्शुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में सब आ गए. मतलब broadening of the shoulder, development of excessive muscle mass, deepening of the voice, मतलब आपका stiffening of your vocal cords, है ना. तो ये सारे functions आ गए with respect to testosterone. ठीक है. Increasing the muscle mass, etc., etc. So ये आपके functions है with respect to males. अब हमको बात करना है with respect to the females. अब एक्टिव इनहिबिन में नहीं लिख रहा हूं बिकॉज एक्टिव इन फीमेल में भी क्या करेगा? एफएसएच के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएगा. इनहिबिन एफएसएच के प्रोडक्शन को इनहिबिट कराएगा. ईस्ट्रोजन इज रिस्पांसिबल. आई एम राइटिंग द फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन हियर ओनली. इफ यू वांट आई कैन राइट इट हियर, डोंट वरी. सो अभी हम ये मेल के हार्मोन्स हो गए. फीमेल के हार्मोन्स में यहां पे लिख रहा हूं बेटा, तो आप इसको कॉपी कर लो यहां ऐसे ही. सो ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे? अब योर असाइनमेंट फॉर टुडे इज यू आर राइटिंग both male secondary sexual characters, changes which take place in a male's body post puberty, and you are also writing up female different secondary sexual characteristics. ये दोनों को लिखोगे और नोटबुक पे लिखोगे. ठीक है. तो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना. वॉइस में तो चेंजेस नहीं आएंगी. ब्रॉडनिंग ऑफ दी हिप्स. अब ब्रॉडनिंग ऑफ दी हिप क्यों हो रहा है? बिकॉज पेल्विक गर्डल या फिर पेल्विक कैविटी की साइज इंक्रीज हो रही है. क्यों साइज इंक्रीज हो रही है बेटा? बिकॉज अल्टीमेटली द चेंजेस आर बीइंग मेंट so that the lady will have to prepare herself physiologically and anatomically for giving birth. तो इसीलिए वो changes develop होते हैं बेटा. ठीक है. सो फेशियल हेयर्स नहीं होंगे, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर नहीं होगा, बॉडी हेयर भी नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू ओनली विद रिस्पेक्ट टू जेनाइटल हेयर एंड विद रिस्पेक्ट टू प्यूबिक विद रिस्पेक्ट टू हेयर इन दी आर्मपिट्स. ये रीजन्स में हेयर का डेवलपमेंट होगा, बट फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर विल नॉट बी सीन इन फीमेल्स. ओके. विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये हार्मोन ईस्ट्रोजन आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंटेनिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब 4 हार्मोन है, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ओके. दिस वाज जस्ट बेसिक, जस्ट अ ट्रेलर व्हिच वी विल बी डूइंग. तो ईस्ट्रोजन का रोल क्या है विद रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट इज एसोसिएटेड विद प्रोलिफरेशन. इट इज एसोसिएटेड विद प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. डिटेल में पढ़ेंगे बेटा हम. अब फॉर नाउ ओनली रिमेंबर एंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूटरस. एंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट ग्लैंड्यूलर लेयर ऑफ द यूटरस जो बनता है, रिपेयर होता है, इट इज थिकन्ड अप, और आफ्टर एट दी ऑन द 23rd डे, मतलब 28 डे का जो साइकिल है, नियरली ऑन द 23rd डे the level of progesterone falls and 28th डे पे एंडोमेट्रियम गिर जाता है.
So जो गिरा है मतलब technically the once upon a time the endometrium was thick and now the endometrium is again thin. अब दूसरे मंथ में again it becomes thick. So ये thickness मतलब it causes proliferation, increase or mitosis of the endometrial cells so that the number endometrial cells का हो hypertrophy and hyperplasia. Hyperplasia का मतलब क्या है? Increase in the cell number. And hypertrophy का मतलब क्या है बेटा? Increase in the cell size or increase in the cellular layer का size. ठीक है? So proliferation of the endometrium or also referred to as it is also causing repair of the endometrium. बेटा मैं repair क्यों बोल रहा हूँ? Because ये damage हो चुका and on the 28th day. Progesterone is responsible for maintenance of endometrium. So it is responsible for maintenance of endometrium. मतलब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है पूरे एंडोमेट्रियम का और ये उसको मेंटेन कर रहा है. मतलब टेक्निकली इट इज एक्टिंग लाइक अ सिक्योरिटी, है ना. हमारे घर पे भी सिक्योर बिल्डिंग बनाने, बिल्डर्स ने बिल्डिंग बना दिया, बट इफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग इज नॉट मेंटेन्ड, राइट, अगर मेंटेन नहीं होगा तो बिल्डिंग का डैमेज होगा. सो मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन. I told you nearly on the 23rd day of an average menstrual cycle, the levels of progesterone drops and the endometrium falls. So what causes the fall of the endometrium? Low concentration of progesterone. What causes the repair of the endometrium? High concentration of estrogen. These are very clear and simple with respect to the hormones. Relaxin एक ऐसा हार्मोन है which is only produced, relaxin is only produced during pregnancy. It is only produced during pregnancy. ठीक है. अब काम क्या है during pregnancy? इसका जो pubic symphysis है, मतलब the attachment, the fibrous, the connective cartilage का जो attachment है ना, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का जो अटैचमेंट है प्यूबिक बोन का. सो आपकी जो पेल्विक कैविटी है सामने से आकर दे जॉइन एंड दे जॉइन, दोनों के बीच में देयर इज अ कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. ये कार्टिलेज इज स्टिफ, सो रिलैक्सिन एक्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर कार्टिलेज एंड इट रिलैक्सेस. मतलब वो कार्टिलेज जो स्टिफ है वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से द प्यूबिक बोन कैन मूव व्हेन द चाइल्ड इज बीइंग डिलीवर्ड. ठीक है. सो रिलैक्सिन प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग पार्चुलेशन. इट एक्ट्स ऑन द व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है बेटा. सो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ गोनाड्स एंड हार्मोन्स ऑफ द गोनाड्स. ठीक है. अब आपको असाइनमेंट के लिए पैथोलॉजीज ऑफ द गोनाड करनी है. आप देखो ये हमने ऑलरेडी गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में पढ़ लिया है. सो फॉर असाइनमेंट, टुडेज असाइनमेंट, यू आर राइटिंग टू थिंग्स. You're writing male secondary sexual characteristics and female secondary sexual characteristics. ठीक है. इसके बाद you're also writing pathologies of male, pathologies of testosterone and pathologies of estrogen. बस ये दोनों की पैथोलॉजीज लिखनी है, बाकी सबकी पैथोलॉजीज नहीं है. क्या होगा अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत इंक्रीज होगा, क्या होगा अगर टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होगा. In male, I want you to write for hyposecretion and hypersecretion. In female also I want you to write for hyper and hypo. This is for your assignment. So here we wind up with this particular chapter. ठीक है. एक छोटा सा सेक्शन बचा है, इतना आपने अगर कॉपी कर दिया होगा. सो आई एम छोटा सेक्शन बचा है, मैं आई टोल्ड यू, एंड दैट छोटा सेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू, आई गेस मैंने ये स्टार्टिंग में करवाया होगा. तो वो सेक्शन क्या है? बेसिकली इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ठीक है. सो लेट्स राइट इट हियर. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको इंसुलिन के कॉन्टेक्स्ट में बताया था. आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, देयर इज टू रिसेप्टर्स, GLUT2 और GLUT4. ठीक है. सो GLUT2 पे जाकर इंसुलिन बाइंड होगा, और जैसे ही GLUT2 पे जाकर इंसुलिन बाइंड होता है ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, GLUT4 खुलेगा, एंड GLUT4 अगर खुल गया तो ग्लूकोज अंदर एंट्री करेगा. तो मतलब बोलने का मतलब यह है इंसुलिन से बाहर तक आया, सेल के बाहर तक आया, अंदर नहीं गया.
Correct? So what is the reason for this particular context? So when we talk about the last topic, that is mechanism of action. Mechanism of action or hormonal action. ठीक है? Now when you talk about mechanism of hormonal actions, इसमें दो टाइप के हार्मोन्स हैं आपके पास. वन इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. ठीक है. अब हाइड्रोफिलिक में क्या क्या आएंगे? हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स में क्या क्या आएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स, अमाइंस एक्सेट्रा. ठीक है. ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स, अमाइंस, दैट्स इट. ठीक है. केमिकल नेचर में हमने 5 केमिकल नेचर पढ़े थे. ठीक है. हाइड्रोफोबिक में आते हैं बेटा आपके स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स एंड आइडोथायरोनीन्स. ठीक है. Now hydrophilic है. Why are they hydrophilic? Because they are protein. They are made up of protein. They are made up of glycoproteins, and they cannot easily cross the cell membrane because this cell membrane is made up of a different material altogether. It is made up of fat. तो ये जो chemicals है, ये जो molecules है, they cannot pass through that particular fatty layer, and hence ये सिर्फ बाहर तक मैसेज देकर चले जाते हैं. Whereas ये same material से बना हुआ है, तो they have this particular property of entering into the through the cell and into the cell. सेल के अंदर जाने के बाद भी वो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे. न्यूक्लियस के अंदर जाकर वो जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करेंगे. ठीक है. So let's try to understand with respect to the mechanism of action. डायग्रामेटिकल व्यू से हम समझ जाएंगे. ठीक है. So इमेजिन कर लो ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. इट बाइंड्स टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स. इट बाइंड्स टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोनल रिसेप्टर. ठीक है. तो मतलब इमेजिन कर लो ये हार्मोन है, हार्मोन गोज एंड बाइंड्स टू दी extracellular hormone receptor. ठीक है. एक्स्ट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर के बाद जैसे ही बाइंड होगा, there will be production of secondary messengers. There will be production of secondary messengers. मतलब बाहर तक मैसेज देने के लिए एक हार्मोन है, अंदर सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए एक अनदर मैसेंजर व्हिच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर्स. नाउ दीस सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जांपल्स है कैल्शियम, इनोसिटोल 3 फॉस्फेट, साइक्लिक एएमपी एक्सेट्रा. ठीक है. तो बनता क्या है? फर्स्ट प्रोसेस क्या है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग. फर्स्ट स्टेप क्या है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग, व्हिच इज द रिसेप्टर? एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर. सो जैसे ही एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा, सेकंड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स. नाउ दीज सेकेंडरी मैसेंजर्स will be responsible for biochemical response. These secondary messengers will be responsible for biochemical response, and these biochemical response will bring about the physiological response. इसका क्लासिक एग्जांपल हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था. कंसीडर दिस एज इंसुलिन एंड दिस इज एज ग्लूकोज ट्रांसफरेज 2, GLUT2 रिसेप्टर. यहां पे इमेजिन करो कि GLUT4 रिसेप्टर है, तो जैसे ही GLUT2 रिसेप्टर पे वो बाइंड होगा, अंदर से सेकेंडरी मैसेंजर आता है कैल्शियम. ठीक है. एंड दिस कैल्शियम विल ओपन, दिस कैल्शियम विल कॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन दी GLUT4 खुल जाएगा, और GLUT4 खुलने के बाद ग्लूकोज इजीली विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल. ठीक है. सो ग्लूकोज जैसे अंदर आ जाएगा, ग्लूकोज अंदर आने के बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड
physiological response. Very clear on that particular point. So hydrophilic. Now talking about hydrophobic. हाइड्रोफोबिक इसके अंदर हाइड्रोफोबिक कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सो आप इमेजिन कर लो कि ये बड़ा सा सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर न्यूक्लियस है. ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी फंक्शन. अब हार्मोन है, ये हार्मोन इजीली क्रॉस कर पाएंगे. दे कैन इजीली क्रॉस the cell membrane because they are derived from the similar component, right? So these hormones can easily cross the cell membrane and these hormones can easily cross the nuclear membrane. ठीक है. जैसे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, so there are certain, they will form they will bind to the intracellular nuclear receptor. So ये क्या बनाया हमने? They are intracellular nuclear receptor. ठीक है. So these hormones will bind to the intracellular nuclear receptor और इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद वो क्या करेंगे? दे विल ऑल्टर दी जीन एक्सप्रेशन. इसीलिए जब मैंने आपको बोला कि टेस्टोस्टेरोन फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. अमाउंट इंक्रीज हो रहा है आफ्टर प्यूबर्टी एंड दीज टेस्टोस्टेरोन विल गो एंड एक्टिवेट द सेल्स ऑफ द फेशियल. देखो टेस्टोस्टेरोन है इसीलिए वो फेशियल मसल्स के सेल्स को एक्ट करेंगे. मेरे फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता तो उनको फेशियल हेयर नहीं आता. अब बोलने का मतलब ये है बेटा, द हार्मोन इजीली एंटर्स थ्रू द हेयर सेल्स ऑफ द हेयर फॉलिकल्स ऑफ द फेस. मतलब बिफोर प्यूबर्टी these cells were inactive, right? After puberty the testosterone enters into these particular cells because testosterone का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ये एंटर कर जाएगा और वो जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर करेगा एंड दैट जीन एक्सप्रेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ केराटिन. ठीक है. हेयर इज ऑल्सो केराटिन. बाल जो है, जो भी मेरे पास नहीं है, दैट इज केराटिन. सिमिलरली आपके फेशियल हेयर इज ऑल्सो केराटिन. सो जो सेल्स अभी तक काम नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे केराटिन को, वो एक्सप्रेस कौन करा रहा है? टेस्टोस्टेरोन, बाय एंटरिंग इनटू द न्यूक्लियस एंड ऑल्टरिंग द जीन एक्सप्रेशन. ठीक है बेटा. So here we end up with this particular chapter, that is hormone control and coordination. We winded up this particular chapter in 8 massive lectures, 8 lectures, and in the next class we will get into a very interesting topic, that is human reproduction. ठीक है. अब वीडियो है ना, तो हम we will have to maintain that particular integrity with respect to because मैं कोई proof नहीं देना चाहता है ना, तो integrity with respect to I didn't want to teach this particular chapter on video, but अभी क्या कर सकते हैं, time we will have to consider that particular aspect as well, right? So any which ways, that is all for today. Take care of yourself. I am very happy to get back to my work. Any grievances, any particular suggestions, please comment or please give it up or try to buzz up on Classroom app. ठीक है. नोट्स बना लो काफी अच्छे से. जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, I will try and make a test paper for you guys so that you can write it. ठीक है. That is all for today. Take care of yourself. Enjoy your day. God bless you.